Tufail, Chairman, Department of Computer Science and Information Technology, Professor Dr. Mohammad Mubashir Khan, Mr. Sameer Dosal, President, Canada-Pakistan Business Council, honorable guests, faculty members, and my dear students. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I, Sadi Arshad, on the behalf of the Department of Computer Science, welcome you all to the Game Development Masterclass. To begin the ceremony in the name of Allah, I would like to call Sayyid Abbas Naqvi for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. Subhanallah. Today we gather here to celebrate the power of game development, a field where creativity meets cutting edge technology to shape the future of entertainment and beyond. This masterclass promises to be an extraordinary journey led by some of the brightest minds in the gaming industry. I would now request Pro Vice Chancellor Professor Dr. Tufel to give his opening remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. On behalf of NID University, I would like to firstly welcome Samir Saab and our distinguished guests from the industry, my colleague, faculty members, and dear students. No doubt, as far as the gaming is concerned, it has got a huge potential. And because of that particular reason, we had been in discussion with Algoma University for long with the purpose of initiating the courses based upon the Unity program so as this potential of the gaming would be availed not only by our students, but also those residing within Pakistan. I mean the students from other universities, the faculty, and the rest of the people. No doubt, if you do talk about the potential of the gaming industry, then it is huge. If I'm not having the old data, I think it's touching more than $250 million, so maybe it's more than that. Billion dollars, yes. So it is growing rapidly with annual around 5 to 6% of the growth rate. So within few years' time, I would think that it would touch $300 billion. Talking about the IT export, unfortunately, we have not done good as far as the country is concerned. The overall IT export officially is around a little bit more than $2 billion, whereas there are some kind of freelancers and all these things. If they are all added, then we are touching $4 billion. Whereas the neighboring country that we are having, India, is crossing 100 million. So I think there's a lot of potential if it pursue the gaming industry, which would result in huge amount of foreign uh, exchange coming into the country, and it would help the economy to grow.
So obviously the gaming industry is very much there, but we need to train the people. And for that, it's very much important that we realize the fact that we would get ourselves engaged in this particular industry. Thanks to Samir Saab that he got us engaged with Algoma University. And interesting point is that Algoma has facilitated us to get our faculty trained in the first place about this particular software. And eventually it was expected that they would be the trainers who would train those who would be interested to get registered. Moreover, uh, the experts would further mention about it that in the real market the cost of this training is huge, whereas here the cost that's been offered is reasonably low. So I think this is a right time that our students and those who are in your contacts should avail the opportunity of getting yourself registered in these courses. And of course, the industry support would be there for pursuing these particular trainings. Another thing that I would like to mention upon that the Ministry of IT having a subsidiary of Ignite, and those students from computer science are very well aware about the Ignite because it avail the final project funding from Ignite. So they've already established our National Incubation Center in the campus, NIC Karachi, wherein a lot of incubation is taking place. Entrepreneurs are going, and then the new startups are coming in. Along with that, we have been lucky to have the Center for Gaming and Animation has also been approved, which is going to be established at NIT University very soon. It would be located in the Circulation Library first floor, and it had supposed to be completed by now, but somehow it got delayed because of some government policies or whatever. But last week, I had a meeting with the Federal Secretary of IT. He is also from the industry, so I pursued him to get it expedited, and he had agreed that it will be pursued, and very soon the work would start. And I would say that within 6 to 8 months, we will have this center, dedicated center for gaming and animation, will be established at NIT University. So that would be an additional kind of a place or avenue for all of you students. So, sir, I would like to thank you again for being with us, and you being an alumnus of this university and always been a forefront for supporting the institution. And I look forward to have you this kind of support in future as well. Thank you very much. Thank you so much, sir. I would now request Mr. Samir Dosal to share his views. Assalamu alaikum. Tufel Sahab, thank you very much for your kind remarks. It is indeed an honor and a pleasure for me to stand in front of you. My name is Samir Dosal, and I'm the president of the Canada Pakistan Business Council. Way back in the last few years, the vision of Algoma University and their vice chancellor, Asma Vezina, who actually has roots from Pakistani origin, we have worked around with this initiative, and then with Ilham Panjani over there, who visited, and we created a process to try and see and to see that how well we can train students over here to go into the gaming industry. It's unfortunate that there is not enough awareness of the gaming industry in Pakistan, and I actually wanted to first of all acknowledge the gentleman in the screen on the left, on the top. That is Vinay. Vinay is instrumental in leading this initiative, and he's been doing an amazing job. So Vinay, thank you very very much for what you do for Algoma, for Canada, and for Pakistan, and for NED. So I also want to Thank you so acknowledge. much for that.
I also want to acknowledge the presence of Rahil Saab. He is actually now a friend. He is also the vice president. So he's wearing two hats at this point in time. He is one of the partners for GameStorm in Pakistan, based in Lahore. उनके एक पार्टनर भी यहाँ मौजूद है हारिस साहब. ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द पैनल. मोर इम्पोर्टेंटली जो सेकंड हैट जो पहना हुआ है, ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाशा. वी हैव बीन honored that we have been working with Pasha for a very long time. I'm sure all of you, I don't need to explain what Pasha is. It's an epic body of software house, and it's the most recognized body and growing very strongly with the new team coming up. They are taking amazing steps, and I think because of people like Rahil and Haris, who's sitting there, the local counterpart, Karachi counterpart of Rahil Saab, who is here, he will be part of the discussion, and we'll try and see and get a better understanding of what is happening. This process, you young people, मैं सिर्फ यहाँ खड़े होकर ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 1979 का एनईडी का ग्रेजुएट हूँ. मैकेनिकल इंजीनियर से मैंने पढ़ा है, और जो कुछ मैं हूँ एनईडी की वजह से हूँ. सो I proudly stand in front of you to try and see. मेरा रोल ये है to try and connect the dots. देखें, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं. डॉक्टर इमरान जोफा साहब जैसे, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट ही रन्स, द काइंड ऑफ एंगेजमेंट, द टेक्निकल एक्सपर्टीज दैट ही डज. हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं मंसूर सैयद साहब जो हैं, he has been instrumental and pushing me and everybody in setting up the Canada Pakistan Council for Education, and he plays that very important role. I have to acknowledge Dr. Sarosh Lodi Sahab for the wonderful initiative, and collectively aap sir jo kiya hai, and the entire team. It's all about team effort. And I also want, unfortunately वो present शायद नहीं है, मेरा ख्याल में आना था उन्होंने, is Malik Ghulam Hussain. Malik Ghulam Hussain and we are from the same batch, from the same class. He currently serves as the president of NEDAC, NED Alumni Canada. So collective role, there are other initiatives that are going to happen in February, which we will all be a part of. I am here, and I am inshallah going to stay on for that initiative. So all this, I just don't want to take too much of your time, because I want people to get a better understanding, and people over here will share what the opportunities are and how you can benefit. मैं सिर्फ जो मैं समझा हूँ, and it is so important that you as students, and youngsters of our nation, who I'm very proud of, that if you are able to earn, say, 50,000 rupees by doing these gaming courses with the support of Brainstorm and Pasha, and the work and the connectivity and the respect that NED has got in the province, in the country, and what they bring to the table, there is potential for tremendous growth. जो billions of dollars की बात करें, वो billions upon billions of dollars है. We should make that effort. We should stay connected. We should connect the dots to make sure. I make the commitment that I will be there to help out, to do the connectivity role. आप लोगों के काम है, आप लोग youngsters का काम है how to make. But yeah, thank you for coming. You are also going to be a panelist. दूसरे और भी बहुत सारे लोग हैं. I think it's enough that I will end now, and with a thank you and with a prayer, please spread the word around. This is an opportunity for all of us, for youngsters of Pakistan, to avail this opportunity. ये hidden treasure है जो offer कर रहे हैं और जो lead कर रहे हैं इसको विनय. Inshallah, this will create tremendous opportunities, and we will up the bar for Pakistani IT professionals to come into the gaming industry, which is a multi-billion-dollar industry. वो हारिस और ये राशिद राइल बताएंगे. So thank you very much. All the very best. Keep up your good work. Thank you so much, sir. I would now request Mr. Syed Haris Izhar to share his views. Okay. Without further delay, let's move straight to our keynote session. Joining us online are Mr. Raheel Iqbal, CEO of the GameStorm Studios and Vice Chairman of Pasha,
and Mr. Vinay, Director, National Center of Excellence in Immersive Technology, Algoma University, Canada. Please give them a warm welcome. Mr. Rahil and Mr. Vinay, please share your remarks. I hope you are able to hear. Mr. Vinay, would you like to start the session? Please. Please. Yeah, no, I would definitely love to do that. I just want to take quick minutes and let the experts go here. Dr. Dufel, pleasure having you there, and thank you so much for sharing the thoughts. Very inspirational, sir. It's great to see that Ned is leading from the front. Dr. Samir never, like, Mr. Samir never stops talking about Ned. वो कहते तो हैं कि मैं नेट का alumni हूँ, लेकिन वो जीते भी हैं. तो यूँ मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी उनसे काफी मुलाकातें होती हैं यहाँ पे. तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच. एंड समीर सर, थैंक यू सो मच. आप वहाँ पे हैं एंड यू मेड टाइम टू अटेंड दिस इवेंट and speak about all the amazing work that we have been doing. I can tell, I can share. Unfortunately, our president and Ilham couldn't join because this is midnight here in Canada. रात के 12:30 बजे हैं यहाँ पे. But I can know, I can tell you that Algoma is very, very excited for this partnership, and we look forward to all the amazing work that will be done. Dr. Mavi, she is doing it, and I know Dr. Mubashir and Dr. Bilal has been very, very helpful, and I'm very excited to see so many students here. I know I'm not there in person, but I see the crowd, and I'm so excited. The students, you are the future. You are the ones who are going to lead this. But I know Rahil Saab will have more to say. But I really want to thank all of you for coming here today, and do spread the word. The biggest challenge the world will have tomorrow is not technology. विनय, कैन आई Yes, सजेस्ट कि वो जो सेंटर ऑफ please. एक्सीलेंस जो आप लीड कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं प्लीज. Sure, 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 sure. I would love to, and thank you, समीर साहब बुलाने के लिए. तो अल्गोमा में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम चला रहे हैं, ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी में है. तो हमारा जो फोकस है वो पूरा एक्सआर, मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी पे है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसमें हम गेमिंग को भी साथ लेते हैं. तो गेमिंग एक पीस है. इसके अलावा हम जो यूनिटी है, जो हमारा प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, विच इज द वर्ल्ड्स लीडिंग गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जिसको हम यूज करते हैं. तो जो टेक्नोलॉजी है, हम इसको लेके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है. एंड राहिल साहब वुड नो. तो आप यूनिटी इसको सिर्फ गेमिंग कोर्स ना समझें, इसको एक दरवाजा सोचें जो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आए. Think of it as a door to opportunities, not just a keyhole to an opportunity. This is what this game developer course will do. And as a center of excellence, we are committed. We do the same here in Canada. In fact, just recently we had a game incubator program, and we have students who actually developed game in 3 months, and they presented to a panel of judges here. So we know that the potential is huge, and as a center of excellence in immersive technology, we want you to know that we are here to support you. And as you take this course, we would love for you to be in this course. We are here to support you. And I just want to end. I really want to get the expert speaking, but thank you so much again for organizing this, and very, very excited to see all the students here. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Vinay. Mr. Rahil Iqbal, would you like to share your views? Thank you very much. First of all, Vinay, thank you so very much, Mr. Vinay. Thank you, Samir Saab, all the faculty members, NET University. I'm really honored. I'm really grateful. Thanks for organizing this, and obviously, Samir Saab has put a lot of effort in bringing all of this together and providing this opportunity, especially all the students, the kind of opportunity that we are talking about here. So I'm Rahul, and besides the CEO at the Vincent Studios, I'm also the Vice Chairman of Pakistan, which is the IT Industry Association of Pakistan. तो कुछ नंबर्स की भी जब बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि 300 to 400 बिलियन डॉलर की ओवरऑल गेम की है, और इसमें अगर मोबाइल सेक्टर की बात की जाए, दैट इज 200 approaching 200
billion US dollars. So this is the kind of opportunity we are talking about in our mobile sector department. So whether it's free to play, play to earn games, or Pakistan में sir numbers are very promising. खाली पाकिस्तान में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे है. आई वाज सिटिंग विद द आईटी मिनिस्टर हमारी जो है शर्ला खादिर साहिबा और आईटी सेक्रेटरी जरार साहब अभी बैठे हुए थे and we approached Google Singapore say we approached the guy and we were talking about how we can develop this sector here in Pakistan. Right now it's 500 to 600 million US dollars Pakistan gaming sector. And it is, I mean, around in the next 1 to 2 years, we are targeting कि ये sector 1 से 2 बिलियन US डॉलर तक जाएगा, definitely. और उसके लिए definitely जो जो मुख्य important चीज है वो है math. और उसमें नंबर वन स्टेप जो आज हो रहा है वो ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करना. अब अगर हम लाहौर में देखते हैं तो लाहौर में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. देयर आर सो मेनी गेमिंग स्टूडियोज बट कराची में बहुत कम. तो आई रियली इनकरेज गेम फ्रॉम स्टूडियोज के अलावा अगर हम देखें तो कोई परमानेंट स्टूडियो कराची में नहीं है. तो इनकरेज मेरा पार्टनर हारिस वहाँ मौजूद है. वी वर ट्राइंग यार और भी स्टूडियोज वहाँ एस्टैब्लिश की जाए बल्कि इनकी बुनियाद जो है वो यूनिवर्सिटियों से रखी जाए. और मैं अगर ऐसा थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूँ तो जो गेमिंग सेक्टर है कम्युनिटी के डेवलपर्स अगर आप ग्लोबल डिमांड ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड देखें तो वेदर इट्स फ्री टू प्ले टू अर्न गेम्स पीसी मोबाइल एजुकेशन सेक्टर एड टेक में यूनिटी के डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है. एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी इमर्सिव एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हैं जो यूनिटी में डेवलप होते हैं. तो इट्स अ ह्यूज रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर रिसेंट बिल्कुल मेटावर्सेस की टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो लॉट ऑफ मेटावर्सेस की डेवलप इन यूनिटी. उसके अलावा डिजिटल ट्रेनिंग आईओटी के साथ जो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा इमर्जिंग है इस वक्त वर्ल्ड वाइड ग्लोबली. तो हमारे पास फ्रंट की लाहौर में इस वक्त की यूनिटी डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. और नया जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये है कि यूनिटी डेवलपर्स से जब ऑफर की जाती है तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग. वो कहते नहीं हम जॉब में फ्रीलांसिंग ज्यादा कराएंगे. So this is the kind of demand, this is the kind of opportunity we're talking about. Well, in the end, I'm again grateful, highly obliged to इस document पर Tahrir University के all the organizers जिन्होंने event organize किया, especially Sameer साहब. I'm extremely grateful. Vinay, thank you so very much. I'm looking forward के Algoma University के initiative पे, and I look forward के अगले 1 से 1.5 साल में 2 साल में जब पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री 1 से 2 बिलियन डॉलर्स पे. I'm talking about right now. हमने पूरा एक प्लान बना के दिया गवर्नमेंट को और गूगल उसके साथ अलाइन कर रहा है. दे आर सेइंग कि भी हम पाकिस्तान को और भी इमर्जिंग वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग गूगल ने जब कॉन्फ्रेंस की थी दे सेड कि आफ्टर टर्की ग्लोबली आफ्टर वियतनाम पाकिस्तान इज द नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट इन दिस सेक्टर. So I'm really looking forward looking forward to get things happening. और अगले 1-2 सालों में ज्यादा से ज्यादा स्टूडियोज जो है वो कराची में बने. तो सर थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अगेन बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट आज वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है. ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हम सर ग्रेटफुल बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Rahil and Mr. Vinay, for joining us online today. Now we'll move on to the panel discussion. I would like to invite our extraordinary panel of experts, Mr. Syed Haris Azhar, CEO of the GameStorm Studios, who has led the development of over 5,000 games and more than 2 billion downloads worldwide. Sir. Ms. Wajiha Iftikhar, an indie game developer and founder of SNI Games, whose work showcases the exceptional talent emerging from Pakistan's gaming scene. Mr. Humair Khan, founder of Monikami Games, a certified game developer with expertise spanning Unity 3D, Unreal Engine, virtual reality, and augmented reality. And Mr. Samir Dosal, President Canadian Pakistan Business Council. Sir, please join us. को रहने दें, ये एक्सपर्ट हो गया. जैसे मैं सवाल जवाब इनसे यहाँ से
Okay, sir. And now, Dr. Murk Marvi, the moderator for today's session. Please give them a warm welcome, everyone. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for joining this session today. So today we are going to explore key insights, challenges, and opportunities in this sector of game development. And as you all know, we have discussed about it already. The main focus will be Unity, which is one of the main game development engine. Okay, so I'm really great that we are joined by experts today, Mr. Haris, Mr. Humair, and Ms. Wajia. Uh, so the plan is we have prepared a few questions. I will be asking those questions one by one from the panelists. And after each question, I will open floor for audience to ask questions. Okay. So we are trying to make this session more interactive, and we will try to answer all the queries of students so that their confusions can be resolved. So I want to kick start with the very first question, and I would like to ask this question from Mr. Harris. So, Mr. Harris, why Unity? So, what makes Unity stand out as a game development engine, and why should students prioritize it over other game engines? अस्सलाम जी इसको ना आप मैंने कोई लास्ट 14 इयर्स में बहुत सारे इंजन्स पे काम किया है कोको स्टूडी था कोको स्टूडी एक्स था उससे पहले हम बेस लाइन पे काम करते थे तो 3D के लिए यूनिटी से बेहतर इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि यूनिटी जिस लेवल पे जाके आपको ऑप्टिमाइजेशन देता है और यूनिटी की जो गेम्स के अंदर जो गेम का बिल्ड साइज होता है वो बहुत छोटा आता है नंबर वन नंबर टू ऑप्टिमाइज बिल्ड बनती है बहुत आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर मोबाइल फोन जबकि मैं किसी कॉम्पिटिटिव इंजन पे जाता हूँ तो बिल्ड का साइज बहुत ज़्यादा है प्लस एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो मशीन की स्पेक्स रिक्वायरमेंट है अगर मैं क्या दूसरे कॉम्पिटिटिव इंजन पे जाता हूँ जो उसके लिए मशीन की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी ट्रेनिंग भी अवेलेबल नहीं है ये इजी इंटरफेस है हर बच्चा इजीली समझ जाता है ट्रेन आराम से हो जाता है उसको कोई ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग की तरफ या बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ नहीं जाना पड़ता उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इसकी जो सपोर्ट अवेलेबल है मार्केट में और इंटरनेशनली और इसका जो एसेट स्टोर है जहाँ से Yeah, आपको that's बहुत right. सारे एसेट्स मिल सकते हैं बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल सकती हैं वो कोई और इंजन इस वक्त सपोर्ट नहीं करता उतना और अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं नाम दूसरे इंजन का नहीं लेना चाहता लेकिन अगर उस इंजन के साथ हम जाते हैं तो आपको उसकी ट्रेनिंग इतनी एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में उसकी सिर्फ जो बिस्मिल्लाह वाली ट्रेनिंग होती है ना वही कराई जाती है तो आगे जाने के लिए वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है जो आपको यूनिटी में आप कर सकते हैं इस वक्त और आगे कोई सवालों में जवाब आए तो मैं बता दूंगा आपको कि यूनिटी पूरी दुनिया में जो विनय बात कर रहे थे कि ये गेटवे है टू इमर्सिव वर्ल्ड अब इमर्सिव वर्ल्ड कहना आसान है लेकिन उसके अंदर जब आप पूरी दुनिया के अंदर आप जाते हैं तो सिमुलेटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है हेल्थ केयर सिमुलेटर्स हैं डिफेंस साइड के जो सिमुलेटर्स होते हैं जो पैराशूट वाला जो सिमुलेटर अगर आपने आइडियाज देखा हो मूवीज पे बना हुआ है आपके पीएफ के जितने सिमुलेटर्स अभी आप देख रहे हैं आइडियाज में थे वो सब इसी बैकग्राउंड में बने हुए हैं सेकेंडली जो शिफ्ट आ रहा है पाकिस्तान में यहाँ पे एक एनिमेशन इंडस्ट्री भी है यही सेम इंजन एनिमेशन इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है यही सेम इंजन एनिमेशन बनाने के लिए भी यूज होगा सो यूनिटी की बहुत बड़ी रीच है अगर आप उसको करेंगे तो आपके लिए मतलब जॉब सेकेंडरी बात है लेकिन आपके पास अल्लाह ताला खुद ही इतने वसाइल दे देगा कि आप कमा सकेंगे So I agree with Mr. Harris. Unity is very easy to use, especially for beginners. Okay, or दूसरा, it's not limited to game development. The features it offers are huge. Or I was really happy to know when Mr. Rahil shared that there is this thing digital twinning and IoT stuff, and Unity is providing some features related to that. And this is the very latest technology, and Unity is up to date. So their team is working on this tool, and the tool is up to date. Okay. So any question from the audience? Okay, so my second question, I would like to ask this question from Ms. Wajia.
So Mr. Harris has already explained this, but I want to ask you, beyond gaming, how Unity is utilized in other industries like healthcare, automotive, architecture, in other fields. And I would like you to share a few, real world examples as well. Assalamu alaikum. I think Haris has already answered this question. और मैं भी जो है वो फ्लाइट सिमुलेटर्स का ही एग्जांपल देने वाली थी कि दैट इज़ अ वेरी वर्सटाइल इंडस्ट्री और स्पेशली जो है यहाँ पर फाइटर पायलट वगैरह और पायलटिंग स्पेशली जो फ्लाइट का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस जो है वो करवाते हैं वो। फिर देर इज़ ऑल्सो मूवी इंडस्ट्री एनिमेशंस के अलावा भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं देर इज़ ट्रेनिंग के लिए भी जो है वो यूनिटी इस्तेमाल हो सकती है और this one thing that I would like to add for the previous question as well. I think C sharp is being used in Unity. C sharp जो है वो हमारे यहाँ की आजकल की सबसे ज़्यादा robust लैंग्वेज है तो C sharp का लर्निंग कर्व भी इतना ज़्यादा नहीं है तो और बहुत मज़ेदार किस्म की लैंग्वेज है यू कैन लर्न इट वेरी इजीली तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट यूनिटी शुड बी यूज्ड और आई गेस Okay. Yeah, she highlighted a good point. I just forgot to mention that when you do programming for game mechanics in Unity, it supports C sharp. So if you know C++, it's very easy to move on to C sharp. The syntax and overall format is similar to C++, but it supports advanced features and it is more easy to use as compared to C++. We teach students in our university C and C++, so they are very good at it. So it will be very easy for you to switch to Unity and use C sharp, and you will add a new language in your resume. Okay. So my next question, if anyone from the audience have question, if not, then please note down the question. We will ask you to, participate at the end of the session. So my third question is from Mr. Humair. So what do you think? What are some most common career paths for Unity developers and how our students can break into these roles? See, as far as pathway of Unity is concerned, तो उसमें बहुत सारी चीजें इसमें आप काम कर सकते हैं. One being gaming. Gaming अगर है तो gaming में किस तरीके से आपने जाना है Unity को लेके, ठीक है? Number one, gaming के फेज को हम 4 चीजों में ब्रेक करते हैं. One being programming language. प्रोग्रामिंग सीख ली प्रोग्रामिंग के बाद आपने उसको प्रोग्रामिंग जाहिर सी बात है गेमिंग के लिए तो ऑब्वियसली यू टू हैव द एक्सपर्टीज ऑफ प्रोग्रामिंग बाकी उसके अलावा लेवल डिजाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग की भी सिर्फ बात करो आप लेवल्स को डिजाइन कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस वी क्वाइट रिसेंटली वी हैव सीन अ गेम इट्स टाइटल्ड ब्लैक myth वुकॉन्ग अगर आपने खेला वो यूनिटी पे नहीं बना इट वाज लाइक कंप्लीटली रेंडर्ड एंड क्रिएटेड ऑन अनरियल इंजन अभी हाल में जैसे दूसरे गेम इंजन की बात कर रहे थे ऑब्वियसली वो अनरियल इंजन नहीं था since the trainings are very expensive उसकी trainings यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी available नहीं है तो इसलिए यूजुअली लोग जो होते हैं वो यूनिटी के पाथवे को चूज करते हैं बिकॉज इट्स वेरी फ्रेंडली इजी टू लर्न आसानी से इंसान को सीख के आगे गेमिंग में अपना करियर बना सकता है ठीक है आपने प्रोग्रामिंग को कर लिया प्रोग्रामिंग के बाद आपके पास जो एक और जो चीज है जहाँ पे यूनिटी आपकी हेल्प कर सकता है दैट इज आर्किटेक्चर ठीक है जी अगर किसी के पास जैसे फॉर स्लाइड से अगर कोई इंटरेस्टेड है सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में अपने पूरे प्रॉपर्ली 3D प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन करके देखना चाहता है कि वो कैसे दिखेंगे रियल वर्ल्ड में तो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज दे क्रिएट 3D मॉडल्स किसी भी टूल पे बना लिया ब्लेंडर पे बना सकते हैं आप यू कैन क्रिएट और माया या इसके अलावा यू हैव 3D Max है यूनिटी के अंदर भी इनफैक्ट देयर इज दिस टूल एक्सटर्नल एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इज कॉल्ड प्रो बिल्डर यू कैन क्रिएट ऑन प्रो बिल्डर एज वेल बट ये है कि प्रो बिल्डर में जरा ये कह लो कि जो उसकी जो क्रिएशन है और जो टूल्स है उसके उसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन है ये तो होते सर मतलब आपका गेम का और आर्किटेक्चर का उसके अलावा आप जैसे फॉर इंस्टेंस अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन था जो मिस वजीर से किया गया था उसमें उन्होंने लाइक शी आंसर्ड कि आप उसको सिमुलेशन में यूज करते हैं सिमुलेशन के अलावा यू कैन आल्सो यूज इट इन हेल्थ केयर में कैसा यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस लाइक यू हैव मशीन्स वगैरह मशीन्स की डेमोंस्ट्रेशन के लिए आपने अपने किसी भी एक्सवाइजेड हॉस्पिटल के जो स्टाफ है आपने उनके लिए उसका सिमुलेटर बनाया आपने दिखाया कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होगी इस मशीन के क्या क्या टूल्स इस मशीन की क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं तो वो चीज भी जो है वो आप यूनिटी के जरिए यानी कि कहने के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ये आपके पास 3 बड़े जो जैसे कहने के मेन फेजेस है चौथी है आपके पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री
ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या करें, वही अगेन यू क्रिएटेड अ 3D मॉडल एंड देन यू इंपोर्टेड इट, और उसके अलावा पूरे इसमें आप अगर जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से इफ यू गो एंड फाइंड दीस डिटेल्स ऑन यूनिटी का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर भी जाकर आपको ये चीजें मिल जाती है। तो ये है कि 3 से 4 ऐसे डिफाइंड करियर पाथवेज हैं जिनके जरिए आप यूनिटी में अपनी एक्सपर्टीज में हासिल कर सकते हैं। Thank you. So I would like to add, इन्होंने भी mention किया Unity is easy to learn. You can kick start with Unity and start your career in game development. And once you are pro at it, then you can. I think it will be not difficult to explore other game engines as well. At some point in time, you will play with different tools, and it will become easier for you to play with different tools. But if you are a beginner, so I think Unity is a good option to start with. And my next question is from Mr. Harris. So, can you suggest what key skills must a beginner develop in Unity to succeed in game development and build high quality projects? अच्छा, इसके अंदर ये अभी इन्होंने मेंशन किया था रजीना ने कि C# आनी चाहिए। हम जब किसी को हायर करते हैं ना, तो पाकिस्तान में ये वाला टैलेंट कराची में स्पेशली अवेलेबल नहीं है, तो हम रॉ टैलेंट को हायर करते हैं। तो हम जो चीज़ों को देखते हैं कि बच्चे को क्या-क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बहुत Okay, स्ट्रॉन्ग होना yeah, चाहिए। that's important. एल्गोरिथम्स उसको बहुत स्ट्रॉन्ग आने चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग उसकी स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, अगर जावा और C# दोनों में से कोई भी आती हो, हमें कोई मसला नहीं उसमें। हमने कभी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुम किस लैंग्वेज में काम करोगे, जो उसमें अवेलेबल आप कर सकते हो। लेकिन जो 3 चीज़ें मैंने आपको मेंशन की कि उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी हो, उसकी एल्गोरिथम्स अच्छे हों, उसकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। अगर ये 3 चीज़ें हैं, तो हम उस बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं बड़े आराम से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 3 चीज़ें अगर उसके पास हैं, तो वो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन गेमिंग के लिए हमें ये इनफ है कि अगर ये बच्चे को आता है, तो वो आराम से ये काम कर सकता है। और एक गेम में उसका इंटरेस्ट कितना है, खुद गेम्स खेलता है कि नहीं। एक होता है ना कि देखा-देखी बच्चों का होता है कि यार मेरे दोस्तों ने कर लिया है, मैं भी करके देखूँ कैसा लगता है। ज़रूरी नहीं है वो उसमें चले, क्योंकि वो फिर बोर होगा, उसको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ को बिल्ड करने में। एक सर्टेन टाइम पे उसको प्रेशर फ़ील होने लगेगा। तो वो उसका जो पैशन है, वो भी उसके पास होना चाहिए। गेम से उसे कितना लगाव हुआ है, क्या चीज़ है उसको, हम ये सब इंटरव्यूज़ में पूछते हैं। कि उसकी अपनी लाइफ़ में क्या चीज़, उसकी कितने परसेंट वो गेम्स खेलता है। तो हम वो चीज़ें देखते हैं ताकि बच्चे को हमें पता हो कि आने वाले दिनों में जब लर्निंग करेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी उसको इंशाल्लाह। Okay. So I would like to add, so curiosity is important. So you need to be curious, and C# is also important. I would like to share a few of our students. When I did this course, I asked my student to develop their projects in Unity. I asked them to, they were designing, games, and I asked them to develop using Unity. So they did their projects for OOP course. We taught them C, okay, and data structure course, and they did developed games using Unity, using C#. So once your basics are good, once you are very good at object-oriented programming concepts and data structure, no matter you have learned C++ in your university, you can apply those concepts in C#. Okay, it's very easy. It's not difficult for you guys. Okay. So the next question, again, I would like to ask from Humair. How do you see AI transforming the future of gaming? Because AI has impacted every sector. So what do you think? See, as far as AI is concerned, तो obviously gaming का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ेबिलिटी का tool है। अभी quite recently Unity has announced a tool, it's called Muse, अगर आपने देखा होगा कोई अगर gaming में active है। Muse है, Muse एक AI का tool है। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ AI की हम बात करें, तो मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि स्टार्टिंग में लाइक when I got into gaming, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो what I used to do is कि उस वक्त तो GPT से कहते हैं कि मैंने आया था, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में वो it wasn't that much famous as it was in the Western market as well as in the GCC Gulf countries वगैरह जो है। तो वहाँ पे ये था कि like we had exposure, obviously like we get to travel, तो वहाँ पे लोगों से आपको ट्रैक करके चीजों के बारे में पता चलता रहता है। पाकिस्तान में obviously you have limitation। तो अब AI के हमें काफी सारे ये कह लें कि हमें टूल्स वगैरह पता चले, GPT का हमें पता चला। कैन यू इमेजिन कि एक सिंपल सी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने जाके अपने सारे प्रॉम्प्ट्स जितने भी थे वो सारे डिजाइन किए। डिजाइन सॉरी नॉट डिजाइन, मैंने सारों को 1 by 1 टू जिसे कहते हैं प्रोसीजरली राइट किया, एंड देन मैंने जाके उसको फिर जीपीटी पे टाइप किया। जीपीटी को मैंने बोला कि मुझे ये ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें चाहिए, उसने पूरा का पूरा कोड लिख के मुझे दे दिया।
ये तो सिर्फ एक छोटे से एक एक्सटर्नल जिसे कहते हैं कि एआई के टूल की बात है, बाकी उसके अलावा ऑब्वियसली यू हैव अ टूल थ्रू व्हिच यू कैन डिजाइन 3D मॉडल्स एज वेल। आप कुछ नहीं करते, सिर्फ जाके अपने प्रॉम्प्ट को लिखते हो and then all the way what it does is it create the whole 3D character for you. I mean, like currently I'm working on a game. It's started over a year. अगर आपने सुना हो, कहानियां बहुत सुनी हुई लोगों ने, over a year की कहानियां। So I'm currently working on this game over a year. But 3D is just like जैसे आपको मैंने बताया था कि Black Myth है। And then अगर कोई like if someone is into strategy games वगैरह, it's going to be this kind of game. बड़ा गेम है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, probably would take around 3 to 4 years. तो उस पे करने के लिए मुझे यानी कि ऑब्वियसली लाइक आई एम नॉट अ वेरी गुड 3D मॉडलर, जिसे कहना 3D आर्टिस्ट मॉडलर वगैरह, बस बेसिक ऑब्वियसली वी गेट टू डू इट। बट ये है कि लाइक विद द यूज ऑफ एआई व्हाट वी डू इज कि हम जाके अपने प्रॉम्प्ट लिखता हूं, हमें पूरी पूरी जिसे कहते हैं कि मॉडल जनरेट करके दे देगा, कोड जनरेट करके दे देगा। फिर इनफैक्ट अगर यूनिटी में हम अगर आके देखें तो अगर आपने आपने चीज नोट करी होगी, जस्ट लाइक आपके पास एनिमीज होते हैं, आपका प्लेयर है लेफ्ट टू राइट या फ्रंट बैकवर्ड, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, अब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो what usually happens is that he get to face enemies in the game. कोई भी कहीं से भी एनिमी चलता हुआ है तो पाथवे को फॉलो कर रहा होता है। दैट इज द नेविगेशन सिस्टम है, जिसे कहते हैं यूनिटी का एक बिल्डिंग एक एआई है, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कह लें सिंपली एआई नेविगेशन सिस्टम है, जिसको आप ये कहने के नैप मैच एजेंट्स को कहते हैं। उसके जरिए भी आप अपने पूरे गेम की विद इन गेम आप अपने एनिमी की जिसे कहते हैं पूरी की पूरी एआई जो है वो खुद बना लेते हैं, कोड कर लेते हैं, अपनी लॉजिक बिल्डिंग वगैरह करके उसको एनिमी कौन से पाथ को फॉलो करेगा, अगर आप एनिमी को फेस करेंगे तो वो कैसा रिएक्शन देगा, तो विद इन गेम है। बाकी उसके अलावा एक्सटर्नल टूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। Yeah. So AI can be used as a tool like ChatGPT. You can use it to write, starting point programs in C Sharp. But there are some built-in features in Unity which supports AI, as Humair mentioned. Like when you play a game, you are controlling the main character, who is controlling the enemy. Okay, they are, आपके पीछे वो चल रहे हैं, they are randomly appearing where you are in the game. Okay, all these things at the backend they are controlled by AI algorithms. And recently I heard about that a famous game which students play. They are introducing AI players, okay, AI colleagues. So you along with those players will play the game, and you will learn more about more strategies and how human along with AI can play the games. So अगर वो play करेंगे तो of course at the back end someone has to develop those games. मैं एक चीज ऐड कर दूं। Yeah. इसके ना दो एस्पेक्ट हैं। मैं आपको सिर्फ एक एआई की एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम जब ये चैट जीपीटी से पहले हमें सबसे पहले पता चला एआई के बारे में चाइना से। एक तो वो क्लोज सोसाइटी है, किसी को नहीं पता होता उधर चल क्या रहा है, तो हमने एक डेवलपर वहाँ हायर किया था। तो हमने कहा वहाँ इतनी ज्यादा ग्रोथ है, और हम ये पाकिस्तान में बैठ के सोचते थे पहले चाइनीज को प्रोग्रामिंग नहीं आती, और वो दुनिया में बहुत पीछे हैं प्रोग्रामिंग में, हार्डवेयर में बहुत आगे। हमारी टिपिकल एक जो बातें हैं वो ऐसे ही है कि सॉफ्टवेयर में पीछे। अब जाके जब चाइना में देखें आफ्टर कोविड हुआ क्या है, वो सबको ट्रैक करते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो उन्हें पता है कि कौन बंदा कौन खड़ा है, कहाँ पे जा रहा है, किधर मूव कर रहा है, पूरे शहर में कहाँ घूम रहा है। इट्स विद द हेल्प ऑफ एआई। उन्होंने एआई में गेमिंग में जो बूस्ट किया है अपने आप को, आप इमेजिन करें जो एक डेवलपर 10 दुनिया के 10 डेवलपर के बराबर काम करता है। सिर्फ चाइनीज मार्केट का साइज देखो, चाइनीज दुनिया में वाहिद मुल्क है चाइना जो दुनिया के हर गेम को रिवर्स इंजीनियर करके खोल देता है। उनके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है कि आज मैं गेम लॉन्च करता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ आप किसी गेम को रिवर्स इंजीनियर करके कोड हासिल नहीं कर सकते, उसके अंदर ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो अपने इंटरनल जो दुनिया से हट के 200 स्टोर्स हैं उनके, वहां पे वो गेम पब्लिश हुई होती है और उसके अंदर इकोनॉमी भी चेंज की होती है। हम सोचते हैं यार ये कैसे कर पा रहे हैं। तो चाइना से हमें सबसे पहले पता चला था कि दुनिया में चाइना ने एक रेवोल्यूशन लेके आया कि एआई की हेल्प से वो प्रोडक्शन अपनी डबल कर ली उन्होंने, डबल से भी ज्यादा। तो हम रिसर्च कर रहे थे अपने ऑफिस में, भाई देखो कैसे हो रहा है काम, हमें नहीं समझ आया कि कैसे हो रहा है द टाइम जब तक चैट जीपीटी नहीं आया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अभी सीईएस हुआ है यूएस में, जहाँ पे दुनिया की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाई जाती हैं। तो उसमें एनवीडिया के सीईओ ने आपको एजेंट दे दिया है कि आपका सपोर्ट एजेंट है जो आपके साथ गेम खेलेगा एआई का। आप उससे बात करें यार अगला काम क्या करना है, वो आपके साथ साथ चलेगा। वो अगर आप सर्च करेंगे तो ये भी कोई एक हफ्ते पहले की बात है, इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है और ये हर इंजन के साथ अवेलेबल होगा। तो गेम में खेलने वाली साइड से भी आपको आसानी हो रही है इसे,
और जो डेवलपमेंट साइड है वहां से भी आसानी होगी। Yeah, more interesting games, of course. हाँ बिल्कुल, वो A new मुश्किल हो जाएगी feature. खेलना। May I Yeah, add something? yeah, please. AI जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बी केयरफुल, यू डोंट अब्यूज इट, यूज इट टू योर एडवांटेज। लेकिन एआई जो है वो चैट जीपीटी अगर आपको जो है वो कोड लिख कर दे रहा है, ये मतलब नहीं है कि कोड कोड जो है वो चल जाएगा। यू नीड टू टेस्ट इट, बी केयरफुल। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ज़रा मैनुअली काम करती हूँ, तो मैंने मॉडलिंग भी ट्राई की हुई है। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड व्हेन यू आर गोइंग इनटू गेमिंग स्पेशली। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ कि मैं जो हूँ प्रोग्रामर हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो मैं आर्ट्स को तो मैं टच ही नहीं करूँगा। नहीं, गो टूवर्ड्स दैट। आपको आर्ट भी ट्राई करना चाहिए, आपको म्यूजिक भी ट्राई करना चाहिए, आपको राइटिंग भी ट्राई करनी चाहिए। और you you just have to be inquisitive, or there's no such thing as a stupid question, remember that। मैंने जो है वो पिछले 5-6 साल के अंदर इतने स्टूपिड क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया से, जो दुनिया भर के फोरम हैं, तो उसके बाद जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बी ओपन माइंडेड। Yeah, she is right. I totally agree. एक So और we चीज ऐड कर use, दूं, एक yeah, और चीज please. इनकी बात से मुझे याद आया, 2 महीने पहले हम टर्की गए हुए थे, तो देखने के वहां पे क्या हो रहा है। टर्की को कहते हैं कैपिटल है गेमिंग का। तो वहां पे इंडी गेम डेवलपर्स जो होते हैं, जैसे आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, 2-4 स्टूडेंट्स ने मिलकर कोई गेम बनाया है और वो पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को। तो हम वो सेशन में बैठे हुए थे, वो बच्चे पिच कर रहे थे, वो 4 बच्चों ने कोई $50 मिलियन का गेम का पिच किया। कैसीनो गेम, सोशल कैसीनो कहलाता है, कैटेगरी है गेम्स की, वो गेम बनाया। इट्स अ ह्यूज गेम, ह्यूज ह्यूज गेम, जो कि 4 लोग नहीं पर चारों के चारों प्रोग्रामर्स हैं। हमने पूछा ये आर्ट किसने किया है, और वो बड़े गेम का आर्ट कहते हैं एआई से किया है। फिर हमने पूछा ये जो साउंड और वॉइस ओवर से सारे सारा उनकी गेम में 90% काम एआई से किया हुआ था, और $50 मिलियन की वैल्यूएशन पे $5 मिलियन रेज कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि 4 प्रोग्रामर्स हैं, और ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है कि आपको किसी ने कोई रोका नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी अल्लाह ताला ने दी है, आप उसको यूज करें, आप उसको एक्टिवेट नहीं करते। आप यूज करें, आप म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हैं, उससे साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं लिविंग एग्जांपल उनकी बता रहा हूँ, 4 डेवलपर्स हैं और वो पैसा रेज कर रहे थे। और सोशल कैसीनो, आप किसी भी गेम डेवलपर से पूछ लेंगे कि सोशल कैसीनो गेम 4 लोग बना सकते हैं, वो कभी एग्री नहीं करेंगे। 4 लोग बैठ के इतनी ह्यूज गेम विद इन लाइक 4 महीने के अंदर कोई बना दे, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है ये। या इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे जैसे इन्होंने भी हाईलाइट किया कि 4 लोगों ने गेम बना ली, ठीक है, और विद इन अ फ्यू मंथ्स, उससे ये होता है कि एआई पर आप इतना रिलाई करें कि यू कैन स्टार्ट, इट विल हेल्प यू कि आप स्क्रैच से चीज़ें ना बनाएं, बट यू हैव टू ट्रबल शूट, ठीक है। यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। जस्ट कॉपी पेस्ट इज नॉट, यू नो, will not work for you guys, ठीक है, when you are dealing with large projects। So जो लेबर, मैं इसको ऐसे करती हूँ, when I was doing this course and I was assigned a number of projects, we had to do a number of projects in game development, I was new also, so I took help from ChatGPT as well, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स आई हैड टू ऑप्टिमाइज दैट कोड अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। सो जो स्क्रैच से काम होता था वो मेरा टाइम सेव हो जाता था, एंड विद इन 2 to 3 hours आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, ठीक है। सो मैं ये कहती हूँ कि लेबर काम जो है यू नो वो आप एआई से करवा लें, एंड देन अब जो टेक्निकल स्टाफ है, यू आर द कंट्रोलर फॉर दैट पार्ट, ठीक है। So the last question from, and this question is from all the panelists, and I request that you answer one by one. So can you please share an example of real world challenge you faced while working in this industry, or specifically working in Unity? There's one thing that I really like to mention। मैंने जब यूनिटी बिल्कुल शुरू में स्टार्ट किया था, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई हैड नो आइडिया इंस्पेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है, और ये सारी चीज़ें आपस में इस्तेमाल कैसे होती हैं। तो मुझे काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हुई थी, और यहाँ पर जो है वो एक मिसकॉन्सेप्ट था। मैं एपटेक गई थी प्रोग्रामिंग का कोर्स करने के लिए कि मुझे जो है गेम डेवलपमेंट सिखा दिया जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गेम बनाना तो एनिमेटर्स का काम होता है, आप एरेना मल्टीमीडिया जाइए। मैं एरेना मल्टीमीडिया गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो सारा प्रोग्रामिंग का काम है, आपको एपटेक जाना
तो ये सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था। और उसके बाद मुझे, क्योंकि मेरे पास उस वक़्त कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, किसी से कुछ भी नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई वाज़ इंडी, आई वाज़ अलोन एंड आई वाज़ वर्किंग एट होम। तो मैंने जो है वो कुछ मैं बना रही थी एंड सडनली आई गॉट सम एरर्स और मैं उसके अंदर घुस गई। आई स्पेंड 4 डेज़ एंड 4 नाइट्स कंटिन्यूअसली। मैं खाना भूल गई, मैं वॉशरूम भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई। और रिजल्ट ये हुआ, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लिया, लेकिन मुझे मोर देन 50 आवर्स मुझे माइग्रेन था एंड आई स्पेंट इट इन माय बेड। उसके बाद मैंने कोई 2.5-3 महीने जो है वो गेम डेवलपमेंट छोड़ दी। उसके बाद मैं वापस आई बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन और मैं आई डोंट गिव अप वेरी इजीली। तो पता नहीं, इस फील्ड में आना था। कंप्यूटर्स जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। तो ये मेरा तो बहुत अजीब गरीब Yeah, she is highlighting the problem के if someone wants to, कि अपना करियर गेम डेवलपमेंट में बनाए और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन द मार्केट के जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट ले सके, कोर्स कर सके ताकि बेसिक्स डेवलप हो जाए, उसके बाद तो हो जाता है। एंड हेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस अपॉर्चुनिटी बाय इनिशिएटिंग दिस कोर्स इन कोलैबोरेशन विद एल्गोमा। ओके, अच्छा, मैं आपको जो रियल टाइम या रियल लाइफ एग्जांपल है जो काम अभी हो रहा है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हेल्थ केयर सिमुलेटर्स हैं। यस, जैसे मैं एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ कि एमआरआई मशीन है वो कई करोड़ की आती है और वो हर बच्चे को सिखाने के लिए इनके पास लैब में अवेलेबल नहीं होती और वो करवाना भी नहीं चाहिए कि बार बार आप उसी मशीन पे कर रहे हैं। तो उसके लिए सिमुलेटर्स बन रहे हैं जो पाकिस्तान में भी आएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह अमेरिका में जब यूएस आप जाते हो तो आपको सर्टेन ट्रेनिंग्स करनी होती हैं। कोई भी काम करने, आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, आप फायर मैन बनना चाहते हैं या किसी ऐसी टेक्निकल चीज में जाना चाहते हैं जॉब में, तो उस टेक्निकल जॉब से पहले आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। रियल टाइम सर्टिफिकेशन यानी रियल मशीन से पहले वो आपको एआर या वीआर एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, तो वो सिमुलेटर भी सारे यूनिटी में बनते हैं। तो ये रियल टाइम जो पहले ये नहीं हुआ करता था, ये नई लेयर ऐड की गई है रिसेंटली। सो आप ये देखो कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी चीजें जिसको हम सिमुलेट कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अभी मैं बाहर देख रहा था, आपके सिविल वाले बच्चे ग्राउंड में खड़े हुए वो पूरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसको क्यों हमें क्यों ग्राउंड ही चाहिए? क्यों हम वर्चुअल वर्ल्ड में ये क्लासरूम में अच्छे एसी के अंदर बैठा के पहले काम क्यों नहीं उन्हें करा सकते? मिसाल है, आई एम श्योर आप डिसएग्री कर सकते हैं इससे, लेकिन ये काम यहाँ पे भी कराया जा सकता है। इसी तरह यूएई में हम जो पाकिस्तान में लाइव फार्म लाइव आर्म्स के ऊपर रियल बुलेट्स के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। यूएई में जो दुबई पुलिस और उनकी मिलिट्री की जो पहली ट्रेनिंग होती है वो सारी ट्रेनिंग टेक्निकल ग्राउंड जो बनाए जाते हैं सारे वीआर में बनाए जाते हैं, सिमुलेट कराया जाता है। और उनको जो गन्स दी जाती हैं वो सारी सिमुलेटेड गन्स हैं जो पाकिस्तान में अभी तक भी नहीं कर रहे। ये रोजाना आप जाएं, ये लाइव लाइव आर्म्स यूज करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो जी, ये सॉल्व किए हैं। आई वांट टू एड के सिमुलेटर्स वहाँ पर बहुत ज़रूरी होती हैं जहाँ पर मशीनरी है एंड एक्सपेंसिव। ओके, तो आपको अगर ट्रेनिंग्स करवानी है, दोज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी लिमिटेड एंड वेरी एक्सपेंसिव। तो डायरेक्टली उन पर जाने से पहले इफ़ यू हैव अ सिमुलेटर एंड सिमुलेटर के थ्रू यू आर ट्रेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स, इससे कॉस्ट जो है यूजली जो है वो रिड्यूस होती है। सो आप कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन या केस स्टडी देखें जहाँ पर मशीनरी है, इक्विपमेंट है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो आप ये सोच सकते हैं कि इस चीज़ को सिमुलेटर से रिप्लेस किया जाता है एंड यू कैन डेवलप सिमुलेटर्स इन यूनिटी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ केयर में आई थिंक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी अब बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं, गेम्स बन रही हैं उनकी एजुकेशन के लिए, ताकि वो डेली लाइफ में कोप अप कर सकें। उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं थ्रू दीज सिमुलेटर्स, थ्रू दीज गेम्स which are developed using Unity and other game engines. So this is also one of the important sectors that need to be touched in Pakistan. सी जो रियल लाइफ में एक एक्सपीरियंस जो आई थी, मुझे तो ऐसा जल्दी अपनी उसमें नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली लाइक वी हैव किड्स इन आवर फैमिली, तो ऑब्वियसली वंस व्हेन वी लुक एट देम तो ऑब्वियसली उनका जैसे कहते हैं फ्यूचर जो होता है वो बड़ा जैसे कहते हैं बहुत करता है कि यार क्या होगा, कैसा होगा, किस तरीके से ग्रो करेंगे,
क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके सामने आ सकती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, लाइक आई हैव अ फ्रेंड, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो मुझे बड़ा इसी कहते कंप्लेन करता है, मुझसे बड़ा थोड़ा एज में, तो बड़ा कंप्लेन करता था कि यार लाइक मेरा बेटा हो गया है और उसको उर्दू बोलना नहीं आती भी है, तो उसको पढ़ना नहीं आती, मैं क्या करूँ ऐसा, मुझे बताओ कुछ। नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, लाइक वी आर गोना क्रिएट अ गेम जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको सारी प्रोनाउंसिएशन सिखा देंगे। जैसे जस्ट लाइक बेबी गेम्स होते हैं ना, आपने ए देख लिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो what we did is we created a game for especially for that child, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए हमने क्या करा, हमने प्लान किया कि यार चलो यार बैठ के किस तरीके से हम एक गेम बनाते हैं ताकि उसकी भी लर्निंग हो जाए। उसके साथ साथ एक काम ये करना है कि जो तुम्हारे साथ में जो जो लोग मिले हुए हैं उनको भी ये एप्लीकेशन उनको भी फॉरवर्ड कर दो। कैन यू बिलीव इट, जो हमने उन्हें छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिया था, पाकिस्तान की पूरी, मैं स्पेशली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बता रहा हूँ, उस एक गेम ने कोई तकरीबन 1000 से ऊपर फैमिलीज को रीच किया ऑस्ट्रेलिया में, जिससे कोई तकरीबन आप लगा लो कि 1400-1500 बच्चे जो हैं उन्होंने उससे बहुत फायदा उठाया। अब वही जो गेम जो है, लाइक वी आर मटीरियलाइजिंग इट, उसका एक इंग्लिश वर्जन भी बन रहा है, उसका एक उर्दू वर्जन भी बन रहा है, उसका एक अराबिक वर्जन भी बन रहा है, टर्किश वर्जन भी बन रहा है। प्रोनाउंसिएशन है, गेम्स को किस तरीके से, सॉरी अल्फाबेट्स को कैसे आप प्रोनाउंस करते हो, वन क्या है, टू क्या है, किसी चीज को ऐड करें तो किस तरीके से वो ऐड होगी, एडिंग का मैकेनिज्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है, सबट्रैक्शन क्या चीज है। वो जो आपकी रियल वर्ल्ड की, जो आप घर में जो चीजें देख रहे होते हैं और आपके बच्चों को जिस चीज पर प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको एक इंटरेक्टिव फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट कर दिया, जिसकी बेसिस पे उसको प्ले करते हुए आप ये कह लेंगे एंजॉय भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, और जो आपकी बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी जो मैं समझता हूँ सॉल्व की। Yeah. Thank you so much, all of you. Now, any question from the audience? Yeah, please raise. Sir, I want to ask a question from you. Actually, I want to add a point of Ms. Mutmargi, that Ms. Mutmargi mentioned that AI has impacted almost every industry. So far, along with AI, there's a concept of security. Security has impacted almost every industry so far as the gaming. And I want to add one more thing, that there are countless of exploits and hacks that are available on internet. So what are the challenges that security organizations are facing in terms of the rise of security attacks on different organizations of game, and what are the expectations of gaming companies are having from security professionals? अच्छा, इसको ना देखने के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है कि कल आपको पता था टिकटॉक बैन हो गया था। ठीक है, कितने सबकी आवाज आई, पहले रीजन नाटा था। कल टिकटॉक बैन क्यों हुआ है? क्योंकि वो आपका डेटा ले रहे थे। ठीक है, तो जो स्टोर्स की पॉलिसी होती है ना, उसमें ये अलाउ करते हैं, आप परमिशंस देते हो खुद, यार ये हमारा डेटा यूज करो। नंबर 1। नंबर 2, कुछ अर्सा पहले किसी ने फेस ऐप देखी होगी, फेस ऐप आई थी, आप अपनी तस्वीर खींचे और वो आपको 30 साल बाद, 50 इयर्स बाद आप कैसे दिखते होंगे एज करके दिखाती थी, रिंकल्स आ जाते थे। वो रशियंस ने बनाई थी। वो दुनिया का डेटा उन्होंने भी कलेक्ट किया कि आज ये बंदा जो घूम रहा है ये कैसा दिखेगा, हर एक को वो डेटाबेस चाहिए। ठीक, तो जो डिवाइसेस हमारे हाथ में है, हम सबने पहले क्या किया हुआ है, फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, सेंसर। ये शुरू हुई थी चीज लैपटॉप्स के साथ, कि जी थंब लगाओ, थंब इंप्रेशन आएगा। आज आपका मोबाइल पे रेटिना स्कैन होता है, आपका थंब इंप्रेशन जाता है, आपने एक्चुअल में अपनी पूरी चीजें तो प्रोवाइड उन्हें की हुई है। दुनिया की हर एजेंसी इसको यूज करती है, तो डेटा सिक्योरिटी अगर आप कह रहे हैं चाहिए, तो वो है कोई नहीं। और जितने गेम्स हैं, जितनी एप्स हैं, ये आपका डेटा ही उठा रहे होते हैं। अच्छा, हम इंडिविजुअली अगर बात करें तो गेम्स में हम यूज नहीं करते, लेकिन एक जो मार्केटिंग वाली साइड है वो आपका पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। आप नोट करें कि आपको बार बार आप किसी चीज का नाम लेंगे तो बार बार आप एक कीवर्ड यूज करें जो आपकी लाइफ का नहीं भी हो, तो वैसे एड्स आपको सर्व होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी सोशल एप्स ये काम करती हैं। आपके माइक्रोफोन का एक्सेस उन्हें क्यों चाहिए भाई? आप तो उससे कॉल थोड़ी कर रहे हो, इसलिए एक्सेस चाहिए क्योंकि वो आपको डेटा उठाते हैं। तो जो सिक्योरिटी वाले जो पार्ट है ना, उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। हम जो इंक्रिप्शन टूल्स प्रोवाइड करते हैं उस लेवल तक की इंक्रिप्शन देते हैं, उसको भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, चाइना में डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। कैसे करते हैं अल्लाह जानता है, तो वो हमारा काम नहीं है, लेकिन स्टिल ये चीज, ये थ्रेट है। और बड़े बड़े गेम्स चाइनीज मार्केट में आप जाके सर्च करेंगे, उनके स्टोर्स पे अवेलेबल है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कैसे अवेलेबल है। तो अगर पता नहीं आपको मैंने जवाब दिया है कि नहीं दिया है वो सवाल। सिक्योरिटी वाले, हमें तो किसी की नीड नहीं पड़ती यहाँ पे जो सिक्योरिटी की।
हाँ, एक और सिक्योरिटी की हमें जरूर नीड पड़ती है कि हमारे ऑफिस का जो डेटा है इंटरनल वो कहीं से न चोरी हो जाए। उसके लिए हम अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी और उन सब चीज़ों पे काम ज़रूर करते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर है, उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर है। नहीं, आई वांट टू ऐड दिस जी, कि प्लीज़। गेमिंग जब भी आप कोई डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर, जी, तो जी। पहले तो इतना नहीं होता था कि सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, जी। लेकिन नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल मीडिया, सो सिक्योरिटी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन यू आर डेवलपिंग गेम्स, तो उसमें भी आई थिंक देयर शुड बी अ पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी व्हिच मेक श्योर्स कि इट कैन कभी अच्छा डाउन ना देखिए, हो इसमें जाए या इसमें इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, आप सिक्योरिटी मल्टीपल तरीके से देखें इसमें। एक है किसी गेम में सर्वर यूज़ हो रहा है, ठीक है? आप उसमें नेटवर्किंग जैसे जी, जी, मल्टीप्लेयर जी, गेम। मिसाल मल्टीप्लेयर लिया तो सर्वर यूज़ हो रहा है। उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ती हैं, वो सेपरेट है। उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको अलग रखना पड़ेगा। दूसरा आता है जहाँ पे आप डेटा लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने सवाल किया, हम 4 लोगों ने अपना यूज़र नेम वहाँ रजिस्टर किया, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, उसकी सिक्योरिटी की एक अलग लेयर लगानी है आपको, वो अलग सर्वर यूज़ करना है। वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी रिक्वायर्ड है। कोई ऐसा गेम है जिसके अंदर आपके पास सर्वर है ही नहीं सिरे से, एक कैजुअल या हाइपर कैजुअल गेम बना हुआ है, तो वो उसके लिए सर्वर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो गूगल की या एप्पल की अपनी स्टोर पे जाते हैं, उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत वो चेक करते हैं कि इसकी सिक्योरिटी सही है। वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे आप एक्सटर्नल सर्वर्स लगाते हैं, वहाँ पे उसको आपको इंश्योर करना पड़ता है, तो आपको रखना पड़ेगा उधर। Yeah, so security has a role to play in game development as well. तो कुछ थर्ड पार्टी क्योंकि हम प्लेटफॉर्म्स भी होते हाँ हैं, जस्ट लाइक यू एग्जैक्टली फॉर एन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स भी, जैसे जस्ट लाइक यू हैव फोटोन है, यूनिटी का अपना नेट कोड है, मिरर है, वो सारे जितने भी सर्टिफाइड ही होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, ठीक है ना? तो यू नीड नॉट टू वरी। अब वो एक अलग चीज है कि लाइक इफ यू हैव अ डेडिकेटेड सर्वर, आपने तो कुछ सर्वर्स बना लिए, लगा लिए, तो उसमें बहुत सारे आप ये कहना आपको ब्लंडर्स वगैरह फेस करना पड़ते हैं, और हो भी सकता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी के टैक्स होते हैं ना, एक ही चीज है। हम सर So I want to add further thing that I want to ask from the perspective of organizations that there are attacks on organization as well. Like Abhi, I don't know explicitly about Unity, but there are countless attacks on different games like PUBG, Counter Strike. ये भी exploit होते हैं. So what challenges are organizations are facing? देखो यार, विद रिस्पेक्ट टू गेम्स, मैं अपनी यानी कि अगर अपना बता दूं कि लाइक हमें किस चीज के चैलेंजेस वगैरह फेस करना पड़ते हैं। नंबर वन है, आपने अपने किसी भी गेम को जब कोड कर लिया ना, कोड करते हुए आप खुद इस चीज को सारा, जैसे कहते हैं कि आप ये कह रहे हो कि एक डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो, तो कि आपका गेम जो है वो प्रोटोकॉल्स को मीट कर रहा है, जैसे आरएस भाई ने भी बात बोली थी। जब आप किसी भी सर्वर पर डिप्लॉय कर दो ना, उस यानी जैसे फॉर इंस्टेंस किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, स्टीम हो गया, एप्पल पे भी, एप्पल का स्टोर जो है, या गूगल के प्ले स्टोर में भी आप जाना, आपका गेम जो होता है वो 20 डेज का उसका पीरियड होता है, पूरा टेस्टिंग पीरियड होता है वो। तो पूरा का पूरा आपका गेम जो है वो एनालाइज ही हो रहा होता है कि कोई सर्विस, ये कह लो कोई कोई प्रोटोकॉल जो है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ पीरियड ही होता है इसी चीज के लिए। आपका गेम टेस्ट हो जाता है, टेस्ट होने के बाद फिर एक और टेस्ट होता है 15 दिन का, सही है ऐसे। तो उसके बाद देन आपका जो जैसे कहते हैं कि गेम जो होता है पूरा लाइव होता है। अगर अगर कहीं प्रॉब्लम नजर आता है ना किसी भी स्टोर पे, तो आपका गेम वैसे वो कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, फॉरन डाउन करवा देते हैं। आपको वार्निंग आ जाती है कि प्रॉब्लम है ये वाला। आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में डेटा उनका किसी का इनडायरेक्टली उठा रहे हो, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं वो ही बता रहा हूँ कि फिर भी लीगली भी आप उठा सकते हैं, परमिशन देते हैं। बाज़ों का तो ऐसा भी होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस कि आपने कोई गेम को क्रिएट कर लिया, गेम को डिप्लॉय भी कर दिया, तो करा कि आपने फॉर इंस्टेंस आपने गेम डाउनलोड किया, उसको रीस्किल कर दिया। रीस्किल करने, डू यू नो द कांसेप्ट ऑफ रीस्किलिंग? एक 2D प्लेटफॉर्म है, रिसेंटली आपने करा कि उसके सिर्फ पीछे के एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, कैरेक्टर चेंज कर दिया, कोड बिल्कुल एज इट इज है, कोड बिल्कुल एज इट इज है। तो फिर आप करते क्या, आप पूरी रीस्किल कर देते हो। रीस्किल करने के बाद भी आप जब गेम को ये कह लो प्ले स्टोर पे डालते हो ना, तो वहां पे भी आपको चैलेंजेस फेस करने को पड़ जाते हैं, क्योंकि वो प्ले स्टोर की फिर ये पॉलिसी है, वो बोलता है कि आपका कोड जो रिडंडेंट है और आपने कॉपी किया हुआ है, डुप्लीकेट किया हुआ है। तो आप करते क्या हो, जाके जितने भी आपके वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनको रीनेम करते हो। तो यानी कि लगा लो इतना पावरफुल है उनका मैकेनिज्म, पकड़ लेते हैं आप। समझो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट ही कर रहे हो। वैसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, गुड प्रोग्रामिंग इज़ द मेन थिंग। आप उसमें लूप होल्स ना छोड़ें, लूप होल्स छोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वीक होगी और अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है? एंड अदर क्वेश्चंस, या प्लीज़। तो मैंने मेंशन किया था कुछ एआई टूल्स के बारे में जिससे आप मॉडलिंग करवाते हैं, तो आपको ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती? यार ऑप्टिमाइजेशन की तो हर चीज में देखो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ऑप्टिमाइज कैसे करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक 3D मॉडल क्रिएट कर दिया, मॉडल क्रिएट करने के बाद आपने पोर्ट कर लिया, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना? ऑप्टिमाइज करने के आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। आपने कलिंग मास्क पे लगा दी नंबर 1, ठीक है, कलिंग उसकी कर दी, बेकिंग कर दिया आपने, एग्जैक्टली आपने खुद ही बोल दिया था।
कलिंग करने के बाद ही आप उसको बेक करते हो, डायरेक्ट बेक नहीं करते। बेकरी आपकी बाद में एक्टिव होती है, पहले पहले आप उसकी रेसिपी क्रिएट करते हो, ठीक है। तो रेसिपी आप उसकी बना ली, ऐसे फॉर इंस्टेंस आपने कलिंग मास पे इम्प्लीमेंट कर दी। उसके अलावा आपका गेम जो उसकी परफॉर्मेंस कैसी जाएगी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करते हैं कि मटेरियल्स को कम से कम यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस मटेरियल्स आई मीन कलर्स। एक लेवल है, उस एक लेवल के अंदर कितने स्टील का मटेरियल है, वो कलर स्टील का, जैसे आपने देखा होगा ना 3D मॉडल होता है, पूरा उसके ऊपर अपीयरेंस होती है, स्टील वाली आ रही होती है, आयरन की आ रही होती है, किसी प्लास्टिक की आ रही होती है। तो फिर आप इस चीज को भी डिसाइड करते हो ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि आप कितने किस्म के कितने काइंड के मटेरियल्स जो अपने गेम में यूज कर रहे हो। उससे भी होता क्या है कि जो आपकी गेम की परफॉर्मेंस होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, और ऑप्टिमाइज इस तरीके से किया जाता है। आप कुछ बेस्ट एआई टूल बता सकते हैं? यूनिटी मॉडलिंग के लिए एआई के, यार एज सच तो अभी तो ऑब्वियसली लाइक आई कैन नॉट रिकॉल, बट ये है कि एज फार एज मॉडलिंग इज कंसर्न तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह उसके मिल जाएंगे। बाकी स्पेसिफिकली अगर उस पे एआई से अगर आप जाके करोगे, अगर आप एआई से रिलेट करोगे, तो आप लाइक गूगल पे कितने सारे आपको प्लेटफॉर्म्स है जो कि लिस्टेड हुए हैं, आप उसमें जाके टाइप किया, आपके सामने पूरे भरे भरे ऐसे कहते हैं कि वेबसाइट्स आ जाएगी, वहां पे आके आप प्रॉम्प्ट डालो। इनफैक्ट कैनवा भी अभी एक उन्होंने भी आई गेस 3D का भी एक ये कह लो तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एक अपनी एक एक्सटेंशन उन्होंने 3D की भी स्टार्ट करी। पहले उस तरफ से 2D पे उनकी रिस्ट्रिक्शन थी ना, अब ये है कि 3D पे भी लेके आ गए। वैसे कर लेते हैं हम। अच्छा, मैं आपको एक ऐड कर दूं उसमें, कोई अगस्त सितंबर में गूगल ने हमें डेमो दिया था, एक उनके क्लाउड पे, गूगल क्लाउड पे जनरेटिव एआई के साथ वो इन्वायरमेंट डिजाइन करवा रहे हैं। वो मैं आपको रियल टाइम उनका बताता हूँ, उन्होंने हमें डेमो क्या लिया, उन्होंने एक मैनहट्टन दिखाया, न्यूयॉर्क मैनहट्टन, और उन्होंने कहा कि ये मेरी विंडो है, इससे मुझे सारी हाई राइज दिख रही है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा पार्क बना दो। फिर उन्होंने उस पर तस्वीर अपलोड की, और वो थी हवाई की। उन्होंने कहा कि ऐसे जो ट्रीज है ना, ये वाले ट्रीज लगा दो, तो विद इन नो टाइम वो ट्रीज रेंडर होके आते रहे। अच्छा, वो 3D मॉडल से उन्होंने कहा इसको एनिमेट भी कर दो, वो ट्रीज भी हिल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें ना ग्रास सही नहीं, थोड़ी ग्रास और बड़ी कर दो। मतलब वो लिखते जा रहे थे प्रॉम्प्ट, और वहां पे वो चीज होती जा रही थी। हम ये सोच रहे थे कि इसके बाद आगे होना क्या है। मतलब गूगल ऐसे भी कमा रहा है, और हमसे ये क्लाउड पे काम करा के भी कमाएगा। लेटर ऑन, अभी तक वो उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। अब वो हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो जब हमारे पास बीटा में या ऐसी चीज आएगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन गूगल और जो इनके क्लाउड वाली साइड है, वो जनरेटिव एआई और इन सब पे काम कर रहे हैं गेम के परस्पेक्टिव से। तो मोस्ट ऑफली वो जल्दी आ जाएगी चीज इंशाल्लाह। या इस पे मैं ये भी ऐड करना चाह रही हूँ कि गेम डेवलपमेंट में अगर आपको एआई आता है, एंड गेम डेवलपमेंट मेनली सी शार्प, ठीक है, प्रोग्रामिंग, उसके बाद एआई टूल्स यूज़ करके यू कैन डू ऑल दिस स्टफ ऑफ डिज़ाइनिंग आर्ट, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि टूल्स वाकई जनरेटिव एआई के थ्रू इतने आ जाएंगे। अब तो कह रहे हैं ना 3D मूवीज़ भी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बन जस्ट रही है, ऑलरेडी बन रही हैं, तो 3D मॉडल्स भी आई थिंक वो भी एज अ टूल आपके पास फीचर आ जाएगा आगे चलकर यूनिटी के अंदर, एंड यू विल बी एबल टू यूज़ दैट टूल। बट ये ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस हो इन चीज़ों की कि बैकेंड पर वो कैसे काम कर रहे हैं, ताकि अगर आप स्टार्ट उन टूल्स से करें, यू कैन ऑप्टिमाइज दोज टूल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, सब चीज़ें डाल देंगे, इट विल बी टू हैवी टू लोड, ओके। लेकिन नॉलेज होगी कि बैकएंड पर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो यू कैन इजीली प्ले विद दोज टूल्स एंड यूज दोज टूल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप some good interesting games. Any other question? Yeah. As you said, if you want to be a good game developer, then you must be a game player. Sir, I was curious to know, sir, क्या आप भी गेम्स कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आज मैं गेम खेलता हूँ डेली। अगर मैं दिन में तकरीबन 1 घंटा डेली गेम्स खेलता हूँ, जो दुनिया भर की भी होती हैं और अपनी भी होती हैं। अपनी खेलते हैं जरूर चलता है, और दूसरों की खेलते हैं तो इंस्पायर होते हैं कि यार ये भी कुछ कर रहे हैं। और देखो, गेम नहीं खेलोगी ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, फिर तुम अपने दिल में कहोगे भाई सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। तो जब तक आप कंपैरिजन नहीं करते, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हो जहाँ पे ये टैलेंट पूल अवेलेबल नहीं है, तो आपने किसी से तो इंस्पायर होना है। अगर मैं अपने आप को ही कह दूं ना सबसे बेहतरीन हम हैं और सबसे अच्छा ही काम हम कर रहे हैं, तो जब हमारे पास कोई डेवलपर होता है ना, हर बच्चा लिख देता है अपने नाम जाके गेम डेवलपर, सबसे पहला काम उसका ये होता है गेम डेवलपर लिखना। भाई तो गेम डेवलपर है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ यार, जब तक आप 10 गेमिंग इंजन डिफरेंट किस्म के नहीं बना लेते ना, अपने आप को गेम डेवलपर नहीं होना। बड़ा बुरा लगता है मेरी बात ये,
लेकिन NED क्योंकि Academy मैं के खुद थ्रू ना कंप्यूटर साइंस मास्टर ग्रेजुएट हूँ, इनकी तरह जो इन्होंने बातें की, मैं फोटोशॉप भी यूज करना चाहता हूँ, मैं साइन इलस्ट्रेटर को भी यूज देना करना चाहता हूँ, मैं मास्टर 3D मॉडलिंग भी करता हूँ, और ये सब करा है मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे कोई बेवकूफ ना बनाए लेटर ऑन, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ 50-100 लोगों से काम लेना है तो आई शुड नो कि वो कहाँ तक मुझे सही बात बता रहा है। तो ये सारे काम मैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और जो आप सवाल कर रहे हो, अगर हम नहीं खेलेंगे दुनिया की गेम, तो हमें राइट टाइम नहीं पता चलेगा कैसे वो डेवलप होने लगी, कितने टाइम में डेवलप होने लगी। क्योंकि एक डेवलपर बैठा है, वो कह रहा है जी ये तो 6 महीने का काम है, जबकि मुझे उसका रियल टाइम पता होना चाहिए एक्चुअल में कितने दिन का काम है। आंसर चला आपके सवाल, बताएंगे कुछ कह रहे हैं? फ्यू गेम्स आप बता दीजिए और भी करते हैं करंट टाइम। किसी के गेम, चलो मैं तुम्हें और आसान बताता हूँ। एक बच्चों की गेम है, उसका नाम है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स हैं, ठीक है, मैं आपको नाम बताता हूँ। नहीं नहीं, रोब्लॉक्स नहीं खेलता। स्टम्बल गाइड्स, स्टम्बल गाइड्स के नाम से खेला है किसी ने? तो मैं डेली स्टम्बल गाइड्स खेलता हूँ। क्यों खेलता हूँ? क्योंकि मुझे इसमें से नए नए आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस इन गेम से एंगेज हो रही है और मुझे आइडिया मिलता है ये वाला गेम अच्छा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें स्टम्बल एंड सीक है, ठीक है, मैंने कहा यार ये हाइड एंड सीक भी तो गेम बन सकती है। तो अगर स्टम्बल एंड सीक लोग खेल रहे हैं और इस तादाद में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उस तरह का गेम मार्केट में होगा। मैंने आगे गूगल प्ले पे और डिफरेंट जगह सर्च किया, हाइड एंड सीक गेम्स तो बड़े हिट चल रहे हैं आजकल। ये एक एस्पेक्ट समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ। अगर आपको कोई बड़ी कंपनी कोई काम कर रही है जो ग्लोबल टॉप 3 में आ रहा है, वो कोई काम करे तो बेवकूफ नहीं है, उसके पास बहुत सारा डेटा होता है तो वो डिसीजन लेता है। तो आप टू स्टार्ट विद यही देखते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, चीजें कैसे चल रही हैं, अब नेक्स्ट अपकमिंग चीज क्या है। ये विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपको समझ आने लग जाएगा हाउ मार्केट बिहेव्स, इंशाल्लाह। तो ये आपको हर वक्त मार्केट से इन टच रहना पड़ता है, डेटा को देखना पड़ता है। Any other question? कोड भी आपका रिडक्टेड हो जाता है, वहाँ पे आपको नजर रखनी होती है, उसके लिए उस्ताद बनना पड़ता है। Any? वो सब Yeah, please. ये से इंडी गेम डेवलपमेंट में हम बहुत कंसल्टेंट होते हैं, फिर आप फाइनेंशियल खर्च के तौर पे क्या थोड़ा जोर से बोलो। बहुत मुश्किल सवाल है। मैं तो इस वक्त अपने अम्मी अब्बू को ही तंग कर रही हूँ। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है आईटी इंडस्ट्री में जो है तकरीबन 9 साल तक काम किया था, तो वो भी बैकअप में जो है वो चल रहा था काफ़ी अर्से तक। लेकिन यस, गेम डेवलपमेंट में आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, कुछ एसेट्स जो है वो लेने पड़े मुझे भी, उसके अंदर जो है वो करना पड़ा, लेकिन आपको हाथ पीछे रोकना भी पड़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांस ऑप्शंस, फ्रीलांस के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और प्रोग्रामिंग में तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सिर्फ गेम डेवलपमेंट नहीं, आप वैसे भी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, फ्रीलांस को जो है वो चेक करें। मैं इसमें आपको चीज ऐड कर दूं, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न है। आप जितना बड़ा रिस्क लोगे, आपको रिस्क लेना है। अगर आपका रिटर्न आ गया तो उतना बड़ा आएगा, कोई 10 साल के रोने भूल जाएंगे आप। और जब रिटर्न नहीं आ रहा तो आप फिर बैठे रहेंगे। उसकी लिविंग एग्जांपल हर बच्चे को जो पता होती है वो एंग्री बर्ड्स है। एंग्री बर्ड्स ने 92 या 93 गेम्स बनाए, सारे फेल हो गए, फंडिंग ड्राई हो गई। लास्ट गेम था वो सुपर हिट हो गया कि आज तक वो कंपनी सिर्फ वही गेम पैदा कर रही है पिछले 5-7-10 साल से ना। 2011 से आज तक एंग्री बर्ड्स 1, एंग्री बर्ड्स 2, एंग्री बर्ड्स स्पेस, एंग्री बर्ड्स कुछ, यही होता रहता है। तो उनके पास अब वो ब्रांड आ गया है जिसको वो बार बार कैश करें। क्यों? क्योंकि 7 बिलियन की आबादी है और हर रोज कोई बंदा जब एंग्री बर्ड सर्च करता है तो एक नया ऑडियंस उसको मिल रहा होता है, ऑडियंस बहुत और ब्रांड बन चुका है। तो इस तरीके से तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न है। आप अगर आप इस इंडस्ट्री में रहोगे, इसी तरह भी मैं सर को बता रहा था, कनाडा जो है बैकयार्ड है अमेरिकन स्टूडियोज के लिए। अमेरिकन स्टूडियोज की सारी डेवलपमेंट होती है कनाडा में। वहां पे न्यूज आई कुछ दिन पहले कि ईए ने 600 डेवलपर्स को फायर कर दिया। अब वो फायर क्यों किया? इसलिए कि वो गेम 3 साल से बन रही थी और मार्केट का पेस बहुत तेज है। अब उतनी बड़ी गेम जिसके ऊपर $500 मिलियन लगाने थे वो नहीं लगाना चाह रहे, कह रहे भाई यही होल्ड कर लो फॉर नाउ, लेटर ऑन देखते हैं क्या करना है। तो उन्होंने उन डेवलपर्स को निकाला जरूर, लेकिन वो डेवलपर्स कोई जॉबलेस नहीं रहे, उन्हें कहीं और जॉब फॉरन मिल गई होगी। इसकी एक और एग्जांपल आपको दूं, मैं अभी टर्की मेंशन भी किया था, मैं बता भी रहा था सर को कि टर्की में एक $35 बिलियन सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया गेमिंग में। वो $35 बिलियन उन्होंने
यूरोपियन मार्केट के सारे स्टूडियोज को एक्वायर कर बोला कि सऊदी अरब में आओ और यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाओ और यहाँ पे सब मूव करो अपने स्टूडियोज को। वो सारे अपने स्टाफ को उठा के सऊदी अरब ले आए। यूरोपियन साइड पे शॉर्टेज हो गई रिसोर्सेज की, वो आउटसोर्स उन्होंने जाके टर्की से सारी रिसोर्सेज को हायर करना शुरू कर दिया। टर्की स्टूडियोज फंस गए वहां पे। टर्किश ने क्या काम किया, टर्किश ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हायर करना, पाकिस्तानी टैलेंट को हायर करना शुरू कर दिया। वहां हम फंस गए। हमारे पास पहले ही पूल लिमिटेड है और यहाँ पे भी इस वक्त टर्किश स्टूडियोज ने बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ है। मेरा अपना एक एम्प्लॉय वो काफी अच्छी सैलरी पैकेज पे सऊदी गेमिंग स्टूडियो के लिए काम कर रहा है। सो हम उसको कम्पीट भी नहीं कर सकते, इतने पैसे हैं वो। मतलब मैं एक बॉल पर आपको नंबर बताऊं, अभी कोर्स करो, कहीं जॉब नहीं ढूंढो। अगर आपको टर्किश या सऊदी स्टूडियो में जॉब मिल जाए तो वो $3,000 से $5,000 के बीच में मंथली मिलता है। तो पाकिस्तान में कितना होता है, 10 से 15 लाख रुपए आप कमाएंगे ना, कोई टेंशन नहीं है फिर। यहाँ तो अपने सीईओ को तनख्वाह नहीं मिलती इंटरनेशनली तो और of टैक्स भी course. नहीं है, ठीक है, उस इनकम पे टैक्स भी नहीं है। Okay, any other question? Yeah, please. मेरा कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अगर मैं गेमिंग लेता हूँ तो मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए? आपका रोड मैप ये होना चाहिए कि आपने पैसे कमाने हैं। आप फर्स्ट ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, नोबडी केयर्स। दुनिया में जो लोग कमाने हैं निकलते हैं ना, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी के कौन से ईयर में कमा रहे हो। अगर आपको ये क्लैरिटी है, इसका बहुत सादा सा बेसिक बिजनेस फॉर्मूला है कि आपने गेम बनाई, उससे सर्टेन केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। अगर आपकी गेम वो मीट करती है तो आप उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, पैसा मल्टीप्लाई होगा। अगर केपीआईज मीट नहीं करते तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर पहली दफा गेम बनाया खराब हो गया, 4 साल तुम्हारे पास है, तुम पूरी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। 4 साल तक गेम प्रोड्यूस करते रहो, 2-3 साल बाद तुम्हारी वैसी गेम्स होंगी जो पैसे कमा रही होंगी इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हारी परसिस्टेंस उसको बार बार बनाने की होनी चाहिए, छोड़ने की नहीं। और बहुत बड़ा ख्वाब ना देखो कि पहले दिन एंग्री बर्ड बना लोगे या पहले दिन पबजी बना लोगे। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि विदाउट उनके पास 200 मिलियन, 600 मिलियन डॉलर की फंडिंग है, उसके बाद वो गेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मुझसे आके लोग सवाल पूछते हैं आपने कौन सी इतनी अच्छी गेम बनाई, हम नहीं अच्छी गेम बना रहे हैं, हम वो गेम बना रहे हैं जो बेस्ट है हमारे कल्चर के हिसाब से, जो हमारी रिसोर्सेज के हिसाब से बेस्ट है, जो हम प्रोड्यूस करेंगे तो पैसा बना सकते हैं। बिजनेस एक्यूमेंट के हिसाब से हम सोचते हैं ना। अब अगर मेरे पास यहाँ $100 मिलियन की फंडिंग होगी, मैं भी अलग तरह से सोचूंगा। तो ड्रीम रखो जरूर कि वो करना है, इंशाल्लाह वो भी दिन आएंगे हमारे पाकिस्तान के कि लोग इस तरह से पैसा लाएंगे जैसे टर्की में ला रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप स्टार्ट कर दो अभी से, कोई हार नहीं है, यू विल मेक मनी इंशाल्लाह। आप रोड मैप की बात कर रहे थे, ये तो आपको एक जैसे कहते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मिल गया। बाकी अगर सीखना है तो सीखने के लिए एक पूरा ऐसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि आपको पाथवे को फॉलो कर लें। प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इंजन के बारे में पता होना चाहिए कि इंजन कैसे काम करता है, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, मल्टीप्लेयर कैसे काम करता है, मल्टीप्लेयर के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, गेम फिजिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, गेम मैथमेटिक्स कैसे काम करती है चीज़ों के बारे में होना चाहिए आइडिया। प्रोग्रामिंग है डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, वो क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा पूरी ये फाइल है मल्टी थ्रेडिंग कैसे काम करती है, ये चीज हो गई। बाकी उसके अलावा अगर सी शार्प पे जाता है तो सी शार्प के लिए आपको GCLI या ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंड देन डिजाइन पैटर्न्स है, आपको उसके डिजाइन पैटर्न्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सिमुलेशन क्या चीज है, MVC आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। और पूरा कोर्स नहीं, I'm teaching these students who they need to focus on object oriented programming first. That's the basic. Everything is an object in gaming. So when I was working on it, everything is in class, embedded in class. So अगर आपकी ऊप की नॉलेज अच्छी है so you can kick start from there. ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है and then data structure. यूनिवर्सिटी में तो देखो सीख रहे हो, उसके अलावा मैं सजेशन दूंगा कि मेरा YouTube का चैनल है उसको देख लेना, टाइप करना वर्किंग टू कोड विद ह्यूमर। नहीं सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। तो जस्ट गो एंड टाइप वर्किंग टू कोड विद ह्यूमर। वहां पे जैसे कहते हैं मैंने सारे गेम से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना के डाले हुए, सारे प्रोजेक्ट बेस्ड प्लानिंग है। लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट और एक किसी भी चीज को लर्न करना चाहते हो कि एक चीज की मूवमेंट कैसे काम करती है, तो मैंने सारे वीडियोस में उसको लिस्ट किया हुआ है। कोई तकरीबन अभी कोई आई गेस अराउंड 80 वीडियोस है, 2 चैप्टर्स में मैंने कवर किए हैं। 3 से 4 चैप्टर्स और डालने हैं, उसमें आपकी पूरी बिगनर लेवल की कहते हैं प्रोग्रामिंग हो जाएगी। देन ऑल द वे उसमें फिर इंटरमीडिएट डालना है, फिर टुवर्ड्स एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स हैं। सारी से कहते हैं कि एक्सपर्ट लेवल की वीडियो रेंडर्स वगैरह उसमें आपको मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी वगैरह। I want to add कि जो NED Academy in collaboration with Algoma इन्होंने जो certification अनाउंस की है 3 months कोर्स, शॉर्ट कोर्स, तो लास्ट में मैं उसके डिटेल्स बताऊंगी। यू कैन रजिस्टर इन दैट कोर्स
And in that course, we will cover how to develop 2D platformer and 3D game or UI वगैरह game mechanics. All the basics will be covered, including programming as well. So आपको basics पता चल जाएगी what is Unity tool, what features it offers, and how you can start building simple games in Unity. So once you have the basic knowledge, उसके बाद तो you can explore as much, ठीक है, एज पॉसिबल. और ये टूल्स ऐसे हैं जो डेली एनरिच होते रहते हैं. ये नहीं है कि रोज़ाना नए टूल्स उसमें इंटीग्रेट होते रह जाएंगे, फीचर्स आते जाएंगे बिकॉज ऑफ द एआई, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट रेट पर डेवलप हो रही है. सो अगर एक दफ़ा प्ले करना आ गया, उसके बाद तो यू विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू किक स्टार्ट योर करियर इन दिस डोमेन, we would recommend you to enroll yourself in this course, short course of 3 months, I think. So it will be easier for you to explore further. एक चीज ऐड कर दूं. Yeah, चीज, please. आप में से कितने लोग पॉडकास्ट यूजुअली देख रहे होते हो? अच्छा, 2.5 गेमर्स के नाम से एक पॉडकास्ट है, वो आप जरूर देखो. उससे जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, वो मतलब इट्स ओपन. ये इंडस्ट्री बंद नहीं है, कोई छुपाता नहीं है, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है. 2.5 गेमर्स का डेली रूटीन में उनका पॉडकास्ट आता है. 3 लोग हैं, माते जय, जैकब है और फिलिक्स है. इनकी पॉडकास्ट आप देखेंगे, गेम को पूरा डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि गेम में इकोनॉमी कैसे है, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, पैसे कैसे बनाएंगे, हाउ दे आर मेकिंग मनी, कितना पैसा लगाया, कितना पैसा बनाया, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको देते हैं. इट्स अ फ्री थिंग, आप वो देखो. यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, उनका अपना एक स्लैक चैनल भी, आप उसको भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो. वहां से भी नॉलेज मिलती है. वहां दुनिया के, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान, वहां दुनिया के लोग बैठे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप उनसे सवाल पूछो तो. 2.5 गेमर्स, ये जरूर देखो, और इसको देखोगे तो इंडस्ट्री से लिंक हो जाओगे. Yeah, okay, so we are running out of time. One last question from this student, and then we are going to end the session. मेरा क्वेश्चन है यूनिटी के अंदर ऑटोमेशन से रिलेटेड. जैसे आपने सीएस की बात करी, उसके अंदर जैसे वो हमने बताया कि एआई एजेंट्स का बारे में बताया. यूनिटी मैंने यूज़ किया है. मैं स्कूल में ऐसा एक्शन किया था कि डीएसए कोर्स के अंदर यूनिटी में यूज़ किया था. जैसे एक सिंपल सा 2D प्लेटफॉर्म बेस्ड गेम था, एंड 3 अलग अलग गेम मोड्स थे. आपका एक प्लेयर वर्सेस एनिमी की रेस टाइप की थी, जो एक ऐसे रेस गेम भी था कि अगर वहाँ पे प्लेयर लूज कर जाता है तो फिर एक दफा लूज कर जाता है स्टेज 2 तो वापस स्टेज 1 पे जाना पड़ता था. उसके अंदर एनिमी जो उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल था. by using the dictionary algorithm and ACE algorithm जो हमारे के DSA कोर्स का पार्ट है. और उसके अलावा एक और उसी गेम के सेकंड पार्ट था, एक आरपीजी स्टाइल का गेम था कि उसके अंदर आपके पास एक डंजन टाइप की मेज थी. पूरी मेज आपको एक दफा दिखेगी, ठीक है. आप लोग स्टार्ट होते हैं, आपके पास एक डॉर्स था, आपको देखिए अपना है, आपके पास एक स्वॉर्ड है. एनिमी जिसके अंदर रैंडमली स्पॉन हो रहे होते हैं डिफरेंट स्पेसेस के अंदर. उसके मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था, तो सिंपल सिंपली लॉजिक रखी थी कि 3 स्टार्स आपने अगर मैप पे कलेक्ट कर लिए तो फिर आपको फाइनल जो होटल है जहाँ से आप एग्जिट कर देंगे वो मिल जाएगा. मेरा सवाल ये है, उसके अंदर जो हमें डेवलप करना चाहिए, हम 4 लड़कों की टीम थी. टाइम उसके अंदर बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी थी जो हमें रेपिटेटिवली करनी पड़ी. फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमेशन ऐड करनी थी, स्पाइक्स को यूज़ करना था, और कभी कभी हम जैसे फंस रहे थे कि या स्टक हो रहे थे इंस्पेक्टर के अंदर चीज़ें ऐड करने के अंदर. कोलिजन वगैरह सबसे ज़्यादा मसला था. जैसे मेज में आपके पास बॉल, उसके अंदर कोलिजन आ रही थी, तो उसको एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रही थी. तो मैं इसको कंक्लूड इसमें करूँगा कि एआई एजेंट्स के हम कब देख सकते हैं जैसे यूनिटी के अंदर आते हैं. तो अगर मेरे यूजर जो है वो प्रॉम्प्ट दे कि मैं इस पोजीशन पे स्टक हो गया, तो फिर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे. प्रॉम्प्ट इंजीनियर अगर आप लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये एक्सपीरियंस के साथ हल होता है. एक्सपीरियंस है. आप ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था सर को कि हमें एक बच्चे पे 1 साल लगाना पड़ता है. पहले महीने 2, पहला जो गेम होता है वो 3 महीने तक यही हाल होता है जो आप बता रहे हैं. एग्जैक्टली मैं उसको, हम आपको पहले से ही ये ट्रेन कर ऐसा ही रहे हैं. होगा. लेकिन अब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि उसको बोलूं यार ये भी कर दो भाई, ये एनिमेशन भी कर दो, तो वो इट विल टेक सम टाइम. और अभी आज भी होता है ये सब, ये सब कर सकते हो. लेकिन वो इतनी बगी होती है इस वक्त कि वो आप प्रोफेशनली उतनी फिनिश गेम नहीं निकाल सकते. ये माइनर छोटे-छोटे से गेम्स बना सकते हो. स्मूथनेस है ना कॉलिजन की वजह से, वो स्मूथनेस जो है वो प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगी. वो फर्स्ट अटेम्प्ट पर यू नीड टू ट्राई अ जहाँ फ्यू कोलाइडर्स लगाने हैं, थिंग्स. आपने किधर कोलाइडर नहीं लगा, कोलाइडर लगा दिया, वो गलत तरह से कर रहा है उसको इंटरैक्ट. तो हाँ, तो वो आपको खुद ही अभी मैनुअली करना पड़ेगा. और इसी तरह ही होगा, 2-4 दफा करोगे ना तो फिर ये स्पीड अप हो जाओगे. प्रैक्टिस के बाद होगा. जैसे एक जनरली बात है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपने पास एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद अगर आप तब हम जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एआई एजेंट्स का जैसे टेंसर फाउंड में बताया कि आपका पूरा सिस्टम होगा, यूजर जैसे उसके ऑटोमेटिकली यानी सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी.
अगर मैं डेवलपमेंट साइड की बात करूँ, जो आप बात कर रहे हो ना, ये यूनिटी लेके आ रहा है पेड वर्जन में एआई। ये वाला एआई जो डेवलपमेंट साइड पे यूज होना है, मैं जो जैसे हम जिस एआई की बात कर रहे थे वो थी प्लेयर वाइज एआई। जो डेवलपमेंट सपोर्ट की एआई है ना, वो यूनिटी ऑलरेडी पेड वर्जन के साथ मेरे ख्याल 2025 वाले वर्जन में लेके आएगा। AI वो पेड agents है, will serve as a उसके अंदर आपके assistant. पास ये डेवलपमेंट साइड की सपोर्ट आ जाएगी। तो हम जो यूनिटी पाकिस्तान में 90% लोग यूज करते हैं वो फ्री वर्जन है, तो उसमें वो सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी प्रो। मैं कह रही थी क्यों एआई का इंतजार कर रहे हो, अपने दिमाग को क्यों जंग लगाना चाहते हो, इस्तेमाल करो इसे। असल में मिस जो ड्यूरेशन होता है ना कोर्स का, वो 3 to 4 months, और उसमें वी आस्क देम टू प्रोड्यूस प्रोजेक्ट्स, और वो भी 6 to 7 weeks, क्योंकि हाफ कोर्स तो वो समझना पड़ता है उन्हें। प्रोजेक्ट्स जो है वो उनका स्कोप जो है वो डिक्रीज करें, और अपना जो है वो लेवल भी चेक करें, अपनी लिमिट भी चेक करें, और इतनी सारी चीजें जो है वो एक साथ चिल्ली से प्रोजेक्ट के अंदर नहीं डाला करें। मैं भी पढ़ा रही हूँ और मुझे भी पता है लिमिटेशन जो है वो फिर जो है वो जो है प्रोफेसर जो है वो ज्यादातर ये फेस करते हैं, मिस मार्क्स देते मिस मार्क्स देते, मिस टाइम नहीं था, मिस ये वाला कोर्स भी करना था। मुझे 2 साल लगे थे सिर्फ मूव का कोड जो है वो सही से डाइजेस्ट करने। 2 साल। आई स्टार्टेड इन 2019, 2021 तक जो है मैं यही सोचती रही कि ये आखिर तक क्या रहा है। लोगों को मैं फॉलो कर रही थी। डोंट गेट नर्वस। अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो थोड़ा सा उसको लिमिट जो है उसकी कम कर। 3 महीने का कर रहे हो तो उसको जो है वो इतना छोटा करें आप कि आपका जो गोल है वो ये हो कि आपने 2 महीने में खत्म करना है। 1 महीना आप उसको क्यूए के अंदर लगाएं, उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड करें। मैंने अभी रिसेंटली जो है वो हैलोवीन के ऊपर एक गेम रिलीज किया था। हम लोग निकले थे एक लेवल बनाने के लिए, छोटी सी लेवल हम लोगों ने बनाई थी। मैंने अपनी दोस्त के साथ में मिलकर गेम बनाया, वो बन गई तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर बन गई। बहुत ही छोटी लेवल है वो। इट्स डॉट आयो के ऊपर वो गेम मौजूद है, आप जाके खेलिएगा, क्रीपी कलेक्टिबल्स के नाम से। आपको अंदाजा होगा। उसके बाद हम लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट में दूसरा और तीसरा लेवल बनाया। वो दोनों लेवल इतने ज्यादा बुरे बने हैं कि वो हम लोग नहीं खेल रहे थे। हमने उसकी टेस्टिंग नहीं की। तो अपनी लिमिट चेक करें, उसके बाद अपना स्कोप सेट करें। ठीक है, चलें। Thank you so much, everyone. I would like to share that NED Academy, in collaboration with Algoma University, has launched a short course on, associate game developer using Unity. And if you are interested and you want to kickstart your career in this domain, please join this course. डिटेल्स जो हैं डॉक्टर मुबशिर ने हमारे ग्रुप्स पर पहले से ही पोस्टर्स काफ़ी दफ़ा शेयर किए हैं, अब दोबारा भी हम शेयर कर देंगे, और यहाँ पर भी हमने पोस्टर यहाँ पर शेयर कर दिया। देयर इज़ अ बार कोड, यू कैन स्कैन दिस बार कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू किक स्टार्ट योर करियर इन दिस डोमेन, प्लीज़ रजिस्टर इन दिस कोर्स एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैंने खुद ये कोर्स किया है and the instructor was from Spain. He was a great instructor and I learned a lot of things. ठीक है, और मैं तो इतनी गेम की आई एम नॉट मैं गेम प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन एज अ किड आई प्लेड अ लॉट। अभी तो मैं नहीं खेलती, लेकिन यूनिटी के मुझे जो एडवांटेज लगे इन सिमुलेशन, इन हेल्थ सेक्टर, इन गेम्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, फॉर एजुकेशन, ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो आसान हो जाए। तो इसमें सिर्फ गेमिंग नहीं है, बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, बहुत सारी सब डोमेन्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, इन यू कैन बिल्ड योर करियर इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फील्ड। ठीक है, सो प्लीज़ डू एक्सप्लोर द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स एंड डू रजिस्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जाग रहे हैं ना? हाँ, ओके। आई थॉट दिस वाज एक्सेप्शनली ग्रेट। मैंने भी आज बहुत सीखा है। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा आप लोग सबके लिए कि जो प्रोग्राम जो कोर्स है
ऑन बिहाफ ऑफ कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्टन पोर्शन ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो हम फर्स्ट क्लास का सेशन जो है जितने जो रजिस्टर करेंगे तो उनको एक सर्टन अमाउंट को, और वो आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा आपकी टीम के साथ. सो वट एवर द प्राइस इज there will be a certain portion of a scholarship which will be available to you so that you can further benefit. एक इंसेंटिव है, हमारी ख्वाहिश है, CPBC की भी ख्वाहिश है, एल्गोमा की भी ख्वाहिश है कि जी हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल आप लोग तक पहुंचाएं, आपकी इंथुजियाज्म जनरेट करें. जो मैं आपसे सवाल सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब it's really appreciative and I think you have the energy. Please register. This is for your own good. हम तो सिर्फ चीज़ें आपको दिखाएंगे, आपको पिक करना, आप लोगों को फैसला करना. और थैंक यू, दिस हैज बीन रियली वंडरफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव. सो बहुत शुक्रिया जी. मंसूर आप कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ. तो बच्चे ने सवाल किया था कि उससे अर्निंग का क्या होगा मसला. देखिए आप है, मैं रायपुर यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, कैनेडी का स्टूडेंट हूँ पुराना. हमारे यहाँ का सेकेंड ईयर का बच्चा जो है DFZ आपने जो प्रोग्राम देखा होगा है, और इंक्यूबेटर है यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 है दुनिया में. और हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं वो बिलियनर्स हैं स्टार्टअप. आप क्यों नहीं कर सकते जब वो बच्चे कर रहे हैं? इस बात में गौर देने को सोचने की जरूरत है. 4 साल तक आपने अपने माँ बाप पे बैठ के कोई डालना है, अरे कुछ काम मिले जुले. थैंक यू. Thank you to all our speakers, panelists, and moderator for the invaluable contributions. I would now request everyone to please join us for the group photo.